All right, students. So my screen is visible to you all. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. So quickly we will start with our revision session and then we will discuss the worksheets. Okay. So in this particular chapter, you will be learning about how do nutrition takes place in animals. What are the different ways through which animals take their food, and then specifically nutrition in humans. Okay. हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से हम फूड लेते हैं, फूड ब्रेक डाउन होता है, अब्सॉर्ब होता है. ओके, सो ऑल दिस थिंग्स वी विल बी लुकिंग एंड डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर. ऑलराइट, सो in the previous chapter you have learned about the plants, how do they make up their food. So it is by the process of photosynthesis. These plants, they have chlorophyll in them and they capture sunlight, and in the presence of CO2 they make their own food. Now animals, if you see, they are dependent either directly or indirectly on plants for their food. So some animals will eat the plants, so they are directly dependent. Some will not eat the plants. Okay, some are carnivorous, but carnivorous animals, when they eat other animals, so they might be dependent on plants for their food. So that is why it is said that directly or indirectly we are dependent on plants for their food. Okay, now food is required by all the organisms because it is important for their survival, for their growth and development. Okay, so now see, whatever food that we are taking, जो भी खाना हम खाते हैं ना, तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर. ये सब चीजें मिला के आपका खाना बनता है. ओके, सो when you are eating a meal, lunch or a dinner, so you have this kind of things present in your meal. Now from this components, carbohydrate, proteins and fats, they are the complex food components. What do you mean by complex? That means size में बड़े होते हैं. They need to be broken down. As such आप उसको नहीं ले सकते. As it is आप उसको नहीं खा सकते. आपकी बॉडी उसको प्रोसेस नहीं कर सकती. So उनका ब्रेकडाउन होना जरूरी है. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स का सिंपल कंपोनेंट्स में ब्रेकडाउन होना जरूरी है. ठीक है. So what will happen after they are broken down? They will be then absorbed in the body. और ये जो absorption है वो each and every cell will get the nutrients from this absorbed part and energy is produced. Okay, तो जो भी हम काम करते हैं वो क्यों करते हैं? क्योंकि we are taking the nutrition, we are eating the food, this complex food is broken down into simple absorbable units and the energy is released which is taken by all the cells in the body. Okay, so यही चीज को आज हमको देखना है. The breakdown of complex components of food into simple substances is called digestion. So we have to see this process of digestion in detail in this chapter. Okay, then you can see there are the different ways of taking food, and this varies from organism to organism. Like bees and hummingbirds, what they do is they suck the nectar of the plants. Then infants, they feed on mother's milk. Then there are snakes which swallow the animals. Okay, they directly take up the animals, quickly swallow them with their tongue. Then there are some aquatic animals which filter the tiny food particles floating nearby them. Okay, then there are some more examples I have put for you. Frog which captures its prey with the sticky tongue. Spiders, they weave the sticky web in which the small insects get trapped. Then there is amoeba, a unicellular organism which will engulf the food particle. ये आप चैप्टर के एंड में देखोगे. ये क्या करेंगे? फूड पार्टिकल को पूरा सराउंड करते हैं with the help of pseudopodia and then they
digest the food particles in the food vacuum inside the body. Okay, then there is the fact given about the starfish. So what they do is, the starfish, they pop out the stomach through the mouth. Okay, and inside the stomach, the organism, the food gets trapped in, and then straight away it goes inside the body and the food is slowly digested. Okay, and then this was the table that we had already done in our previous lecture, various modes of feeding of animals. So we have seen how they adopt different modes, किस तरह से अलग अलग मोड से अलग अलग organisms खाना लेते हैं. Okay, some take by sucking, some by siphoning, some by chewing, or some by capturing. Okay, then this is the main part that we have to discuss, digestion in humans. Okay, now see, what do? We take up the food through our mouth. Okay, we ingest the food through mouth, then we digest it and utilize it for growth, maintenance and repair of the body. And last में क्या होता है, there is some unused part of the food. This unused part of the food is defecated. It is removed as a waste product in the form of stools out from the body. Okay, so we are taking the food, and this food, the maximum part of the food is absorbed. We are getting nutrients out of it, and some part of the food which remains unused or unabsorbed, it is removed out as feces. Okay, so now see, देखो कितना इंटरेस्टिंग प्रोसेस है. आपको इमेजिन करना है कि किस तरह से आपने फूड खाया, तो इतने सारे जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, वो किस तरह से फूड को वन बाय वन ब्रेक डाउन कर रहे हैं. ओके, सो just imagine how this beautiful process is going on in your body. Okay, as soon as you take up the food, जैसे ही आप उसको माउथ में लेते हो, so now this food, it has to pass through a canal. Okay, ये जो एक कैनल है, एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, ये कहाँ से शुरू हो जाता है? माउथ से ही शुरू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं बकल कैविटी. आपका पूरा माउथ रीजन है, उसको आप बोलोगे बकल कैविटी. एंड इट goes till the anus, जहां से unabsorbed food बाहर निकलता है. ठीक है, so now see, this canal is divided into various compartments. What are the compartments? The first one is the buccal cavity, जहां से आप फूड को लेते हो. वहां से फूड पास होगा फूड पाइप से, जिसको हम इसोफेगस भी बोलते हैं. ओके, इसोफेगस से द फूड विल गो इनटू द स्टमक. फ्रॉम द स्टमक it will go in the small intestine. From the small intestine it will go in large intestine, then rectum, and finally the anus. Okay, सो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्डर को याद रखना. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द बकल कैविटी, फूड पाइप और इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस. ओके, इतने पार्ट्स में फूड डाइजेस्ट होके, अब्सॉर्ब होके, अनयूज्ड बन के डिफिकेट भी हो जाएगा. ओके, पूरा जो प्रोसेस है डाइजेशन का, वो कंप्लीट होता है इन कंपार्टमेंट्स में. ओके, सो सी, साइंटिफिकली हम इसे क्या बोलेंगे? ऑल दीज पार्ट्स टुगेदर दे फॉर्म द एलिमेंट्री कैनल, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं या डाइजेस्टिव ट्रैक बोलते हैं. ओके, सो ये जो पार्ट्स हैं, ये जो 6 पार्ट्स हमने आगे पढ़े, ये सब मिला के एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं. From mouth to anus. Okay, so the food components will gradually get digested as the food travels through the various compartments. Okay, slowly, one by one, process wise digest hota hai in these compartments. Okay,
Now you can see the inner wall of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canals. Okay, see, किस किस की बात हो रही है? The inner wall of the stomach, small intestine, then there are various glands. Glands का मतलब क्या होता है कि वो कुछ ना कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं जिससे फूड को ब्रेक डाउन होने में मदद मिलती है, हेल्प मिलती है. Okay, so the inner wall of the stomach, small intestine, and various glands associated with the liver and pancreas. Salivary glands secrete digestive juices. Yes, Rishita? मैम वो लेबर के बाजू में छोटी सी लाइन है वो क्या है? किसके बाजू में? लिवर. ये? यस मैम. हाँ, ये है ना, लिवर के दो लोब्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, राइट एंड द लेफ्ट पार्ट. तो ऐसे अभी आपको क्योंकि यहाँ पे वन डायमेंशनल इमेज ही दिख रहा है, इसीलिए आपको इतना क्लियरली नहीं समझ. 2D इमेज है, दिस इज नॉट द रिफाइंड 3D इमेज, इसीलिए आपको ये पीछे से जो स्ट्रक्चर है वो आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है. ओके, सो दो जो लिवर होता है इसका जो शेप होता है वैसे वेज शेप होता है और उसमें भी दो लोब्स होते हैं. ओके. ठीक है, तो वो एक सेपरेशन, नॉट द सेपरेशन बट अ काइंड ऑफ ऐसे डिवीजन जैसा रहता है जो दो लोब्स, लिवर को दो लोब्स में बांटता है. ओके मैम, थैंक यू. ठीक है, ओके. नाउ सी द इनर वॉल ऑफ द स्टमक, small intestine, various glands associated with the canal like the salivary glands, liver, and the pancreas. They secrete the digestive juices. Now, what is the role of this digestive juices? They convert the complex substances of food into simple one. Okay, so the digestive tract and the associated glands together constitute the digestive system. Okay, जब भी आप digestive system बोलेंगे तो उसके अंदर एक तो डाइजेस्टिव ट्रैक रहेगा ही रहेगा और जितने भी एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं जो कि डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं वो भी रहेंगे. ओके, नाउ वी हैव टू सी हाउ दिस फूड it passes through the different parts of the digestive tract. Okay, so the first one we have is mouth and the buccal cavity. Now food is taken into the body through the mouth. Okay, that means we take the food through the mouth. This process is called ingestion. Now in the mouth what we do, we chew the food. Okay, that means जो भी आप टुकड़ा लेते हो, you have to, food का जो भी आप पार्ट लेते हो, you have to chew it. उसको छोटे छोटे पार्ट्स में पहले तो ब्रेक डाउन करना है. So ये chewing of food is possible because of the teeth in the mouth and also the tongue. Okay, so teeth, what it will do, it will break down the food into smaller parts mechanically. Okay, because you are chewing, आप मदद से आप chew कर रहे हो और उस chewing की मदद से क्या हो रहा है, teeth food particles को छोटे छोटे parts में break down करता है. So see how do the tooth perform this action. So see, अगर आप एक tooth का structure देखोगे, teeth is plural, tooth is singular. So if you see the structure of the tooth, it is rooted in a separate socket in the gums. ये जो gums है ना red color की जिसको आप बोलते हो मसूड़े. So ये gums में आपका जो teeth होता है वो जुड़ा हुआ होता है, embedded, tight होता है, हिलता डुलता नहीं. It is deep rooted in the gums. Now in humans, you see there are two sets of teeth, temporary set and the permanent set. So when we say temporary set, these are the milk teeth जो आपको बचपन में आते हैं. 6 to 8 years तक आपको मिल्क टीथ रहते हैं और फिर धीरे धीरे ये जो मिल्क टीथ हैं ये टूटने लगते हैं. So now this milk teeth are replaced by the permanent teeth by the time you are 6 to 8 years. एक एक करके दांत टूट जाता है और फिर उसकी जगह पे परमानेंट टीथ आ जाते हैं. Okay, so now you can see the tooth is covered by a white substance called enamel. Okay, shiny white substance से इसकी coating होती है जिसको हम बोलते हैं enamel. Okay,
सो ये जो इनामल है ना, मोस्टली क्या रहता है कि कभी कभी ये घस जाता है और उसकी वजह से आपको सेंसिटिविटी होने लगती है। अभी आपको तो नहीं होगी, आप लोग सब तो बहुत छोटे हो, पर बड़े लोगों में ऐसा होता है कि जनरली ये जो एनामल है वो करोड हो जाता है, घस जाता है, तो उनको सेंसिटिविटी होने लगती है। आपने एडवर्टिजमेंट्स वगैरह में देखा होगा, ऐसे सेंसिटिविटी के लिए अलग से टूथपेस्ट आते हैं। ओके, सो वो इसीलिए ही रहता है क्योंकि मोस्टली ये जो एनामल है वो थोड़ा सा करोड हो जाता है। ओके, नाउ मूविंग टू अनदर पार्ट, वी हैव टू सी द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द टीथ, क्योंकि ये जो टीथ है ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं, अलग अलग शेप्स के होते हैं। इनका जो अपीयरेंस होता है वो अलग अलग होता है और इनका फंक्शन भी अलग अलग है। तो क्या है देख लेते हैं। There are 4 different types of teeth in humans: incisors, canines, premolars, and molars. ICPM. Okay, ICPM ऐसा याद रखना है हमको. Incisors, canines, premolars, and molars. So starting with the incisors, see, these are the flat chisel shaped teeth. ये यहाँ पे फिगर में आप देखोगे, आपके यहाँ पे रखे हुए हैं incisors, canines, premolars, or molars. So they are chisel shaped. They lie in front of the mouth, and there are 8 incisors teeth total. Okay, 4 in each jaw. ये 2 jaws हैं अपने, एक ये अपर जॉ होता है और ये लोअर जॉ होता है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे आप देखेंगे तो 8 होंगे, 4 हर एक जॉ में आपको देखने को मिलेंगे इंसिजर्स। काम क्या होता है इंसिजर्स का? दे हेल्प इन कटिंग एंड बाइंडिंग ऑफ फूड आइटम्स। ओके, देन सेकंड वन इज कैनाइन, शार्प pointed round shaped teeth. So they are used for holding and tearing of food. और ये जो कैनाइन्स होते हैं 4 होते हैं टोटल, 2 in each jaw, अपर जॉ और लोअर जॉ में मिला के टोटल 4 होते हैं। ठीक है, सो कैनाइन्स आपने देखा होगा कि जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं ना उनमें बहुत तेज होते हैं। कार्निवोरस एनिमल्स में कैनाइन्स जो होते हैं बहुत ही शार्प होते हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव टू टीयर द मीट। मीट को टीयर करने के लिए ये कैनाइन्स काफी शार्प होते हैं। देन प्रीमोलर्स, नाउ देयर आर टोटल 8 प्रीमोलर्स, हर एक जॉ में 4 हैं, एंड दे आर यूज्ड फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द फूड। डार्ट जिसको हम बोलते हैं ना, वो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। Okay, and then lastly we have molars. So these molars, they have a flat surface and they are helpful in fine grinding of the food. उसको और भी पतला बारीक काटने के लिए काम आते हैं। टोटल 12 मोलार्स होते हैं। ठीक है, अब किसी किसी में ऐसा होता है कि ये आप देखोगे तो वैसे टोटल 32 टीथ होते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि बड़े होके ये पूरे के पूरे 32 नहीं आते हैं। 2 टीथ ऐसे होते हैं जिसको हम बोलते हैं विजडम टीथ, उसको अक्कल की डांट ऐसा बोला जाता है। ओके, सो वो क्या रहता है कि वो बाद में आती है। ओके, सो वो जगह खाली रहती है वहां पे, 30 जितने टीथ होते हैं और बाद में ये 32, 28 to 30 होते हैं और बाद में ये मोलर्स में से विजडम टीथ आते हैं इन आफ्टर 18 years ऑफ एज। ठीक है, सो ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ और उनका अरेंजमेंट और फंक्शन क्लियर है? क्विकली इन द चैट बॉक्स और यू कैन इवन स्पीक अप। तो आगे बढ़े। Yes, ma'am. ऑल ऑफ यू? Ma'am, clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके, ओके। सो इस तरह से ये टेबल में आपको एक एक्टिविटी दी गई है, वो भी मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। सो आप बाद में इसको देख सकते हो जब आपको ये पीपीटी मिल जाएगा। मोस्टली सबको मिल गया है, जो भी अभी न्यू है उनको फिर से मिल जाएगा ये पीपीटी। ओके, फिर देखो एक फिनोमिनन है अपने पास जो कि है टूथ डिके, सड़न, जिसको हम बोलते हैं ना दांतों में सड़न। सो स्वीट्स एंड टूथ डिके, लेट अस सी व्हाट इज इट। सी नॉर्मली क्या होता है कि हमारे माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली वी हैव बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अवर mouth, but they are not all harmful to us. Okay, but what happens when you don't clean your teeth or mouth after eating? आपने मान लो कुछ मील्स आपके लिए हैं और उसके बाद आपने मुंह नहीं धोया, ओके, आपने गार्गल नहीं किया या फिर आपने अच्छे से खाना साफ नहीं किया जो बचा हुआ है,
सो क्या हो जाएगा, ये जो बैक्टीरिया है ये ज्यादा ग्रो होने लग जाएगी. सो नाउ व्हाट विल हैपन, दीज बैक्टीरियाज विल ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट इन द लेफ्ट ओवर फूड. जो भी खाना आपके दांतों में बच गया है, रह गया है, तो उसमें से ये जो बैक्टीरिया है क्या करेगी, शुगर्स को ब्रेक डाउन करेगी एंड इट विल रिलीज द एसिड्स. और ये जो एसिड्स हैं जो कि रिलीज होते हैं, दे ग्रेजुअली डैमेज योर टीथ, दे आर हार्मफुल फॉर योर टीथ. सो धीरे धीरे ये जो एसिड्स हैं आपके दांतों को सड़ा देंगे. सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ टूथ डीके. ओके, एंड इफ इट इज नॉट ट्रीटेड ऑन द टाइम, स्पेशली है ना, बच्चों में ऐसा होता है कि उनको चॉकलेट्स ज्यादा पसंद होती हैं, तो चॉकलेट्स वगैरह खाने के बाद में अगर आप उनको माउथ वॉश नहीं करवाते हो अच्छे से, तो क्या हो जाता है, ये जो शुगर है ये एसिड्स में बदल जाता है, एंड दैट इज व्हाई उनके जो दांत है वो जल्दी सड़ जाते हैं. ओके, सो दिस विल लीड टू टूथएक एंड इवन टूथ लॉस. दांत गिर जाते हैं, सड़ने के बाद दांत गिर भी जाते हैं. ओके, सो चॉकलेट, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, these are the products in which sugar is found in major amount, and these are the main culprits, main responsible reason for the tooth decay. Okay, so what we can do, we should always clean the teeth with a brush or a datun and a dental floss. Okay, so that no food particle is trapped in between the teeth. किसी किसी के teeth के बीच में जगह रह जाती है, तो उसकी वजह से भी वहां पे फूड पार्टिकल्स स्टिक हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं. ओके, सो ऐसे केसेस में there is important to see that all our teeth are nicely, all our teeth is nicely clean. Okay, and we should also not put dirty fingers or unwashed objects in the mouth. All right, then we had discussed one activity, that is salivary glands in the mouth and their function. So ये जो salivary gland होता है ये किस में present होता है, saliva में. Okay, now this salivary gland, it helps in the breakdown of starch into sugar. So जब आप आयोडीन टेस्ट करोगे, वो स्पेसिफिकली स्टार्च के लिए होती है, जो कि ब्लू कलर आपको देता है. आयोडीन इज येलोइश इन कलर, एंड व्हेन यू ऐड this to the starch solution, you will get a blue colored substance. So this indicates that starch is converted into sugar. कुछ समय के बाद, जैसे आप मान लो कि आप कोई रोटी या फिर आप चावल को बहुत देर तक आप चबा चबा के खाते हो ना, तो वो आपको थोड़ा सा स्वीट टेस्ट देने को देगा. सो वो जो स्वीट टेस्ट होता है वो क्यों होता है, बिकॉज इट इंडिकेट्स दैट द स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू शुगर्स. ओके, so the role of saliva is to break down starch into the sugar. So जब भी आप चपाती या फिर चावल ऐसा कुछ स्टार्च वाला आइटम खा रहे हो, तो वो पार्शियली, पूरा तो नहीं बोल सकते, बट पार्शियली ब्रेक डाउन होगा माउथ के अंदर, बिकॉज माउथ इज हैविंग saliva and the saliva is secreted by salivary glands. Okay, then next we have tongue. Now this tongue is a fleshy muscular organ which is attached to the back floor of the buccal cavity. Okay, so front end से आप देखोगे तो it is free, it can move in all the directions. Okay, आप टंग को बाहर निकाल सकते हो, मूव कर सकते हो. Okay, so front end से free है, back end से it is attached to the floor of the buccal cavity. Now see function. Whatever we are talking, it is because of the tongue. It helps in speech. It also mixes saliva with the food during chewing and keeps and helps in swallowing the food. Food, it has to go inside ना, अंदर food pipe में जाना है, फिर stomach में जाना है, फिर small intestine में जाना है. तो tongue का काम यही होता है कि वो saliva के साथ खाने को mix कर दे अच्छे से, so that the food is swallowed in the food pipe. Okay, and then again there are many taste buds present on the surface of the tongue. Tongue के ऊपर अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे रेड कलर के प्रोजेक्शंस होंगे. वो जो प्रोजेक्शंस हैं वो होते हैं टेस्ट बर्ड्स. जो हमको डिफरेंट डिफरेंट खाने की टेस्ट आती है, इट इज बिकॉज ऑफ द टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट इन द टंग. ओके, सो हियर आई हैव पुट यू, वी हैव अनदर एक्टिविटी गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, एंड हियर आई हैव पुट इनटू दिस फिगर. यू कैन सी कहाँ कहाँ पे आपको टेस्ट डिटेक्ट होगा.
टिप पे आपको स्वीट टेस्ट डिटेक्ट होगा, बैक में आपको बिटर टेस्ट डिटेक्ट होगा, फिर साइड्स में आपको सॉल्टी और सार टेस्ट डिटेक्ट होगा। ओके, यहाँ पे आप कर सकते हो जैसे कि ये है, यहाँ पे आपको शुगर, देन यहाँ पे सॉल्टी, देन मिडिल पार्ट में कॉर्नर में सार और पीछे के पार्ट में बिटर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया Yes, ma'am. एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, अगर बीच में कुछ भी नहीं समझ में आता है तो प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क। ओके, डोंट keep it as a doubt. Now the next one we have is food pipe or the esophagus. Okay, अब ये जो खाना हम अभी तो हम माउथ में डिस्कस कर रहे हैं, अब माउथ से आगे बढ़ेगा फूड पाइप या फिर esophagus में जाएगा. So the swallowed food passes into the food pipe or the esophagus. Now food pipe कहाँ आपको देखने को मिलेगा? Along the neck and the chest region. Neck और chest region के बीच में आपको ये फूड पाइप देखने को मिलेगा. फूड पाइप का काम क्या होता है? टू पुश द फूड डाउन इनटू द स्टमक. ओके, सो ये यहाँ पे कोई भी आपको डाइजेशन नहीं मिलेगा, बट क्या होगा, ये जो खाना है ये आगे जाके स्टमक में जाएगा. ओके, सो एट टाइम्स आपने देखा होगा व्हेन द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द स्टमक, इट इज वॉमिटेड आउट. ओके, कुछ इरिटेशन या कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस अगर फूड के अंदर प्रेजेंट है तो वो स्टमक में जाएगा तो सही, लेकिन बिकॉज देर इज अ इरिटेंट, देर इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट, तो वो स्टमक से सीधा बाहर आएगा. कैसे बाहर आएगा? रिफ्लक्स होगा, स्टमक से फूड पाइप में जाएगा, फूड पाइप से माउथ के थ्रू बाहर आएगा थ्रू वॉमिटिंग. ओके, नॉर्मली क्या होता है कि माउथ से इट हैज टू गो इनटू द फूड पाइप एंड देन इनटू द स्टमक, बट इफ समथिंग इज रॉन्ग विद द फूड देन वी यूजुअली वॉमिट आउट द फूड. So that is in the opposite direction. See, so what happens in vomiting? There is a forceful expulsion of food from the stomach or even from the small intestine. Okay, forceful expulsion. ये against है ना, normally ऐसे conditions में नहीं होता है. Okay, so this is something going against. आप normally आप खाना खा रहे हो तो it has to go inside through forward movement, but this is the opposite movement. So that is why it is a very forceful expulsion whenever a person vomits. So there is a lot of, he or she has to do it with a lot of force. That is why it is a forceful expulsion, either from the stomach or from the small intestine. So the food will come out in the opposite direction. जैसे कि मैंने आपको बताया, stomach से esophagus में, esophagus से mouth में. Okay, and it is a type of a reflex. Okay. Then sometimes it happens that whenever you are eating in a hurry or you are talking or you are laughing while eating, so आपको एक कफ आने लगती है या फिर हिचकियां आने लगती है. Okay, or sometimes you feel a choking sensation. Choking means घबराहट होने लगती है. So this means that the food particle has entered into the windpipe. There is a common passage for the food pipe and the windpipe to pass. ओके, सो एयर भी पास होती है, खाना भी पास होता है. तो अगर आप खाने के बीच में बात करोगे तो साथ साथ में एयर भी ट्रैप्ड हो जाएगी, एंड दैट इज व्हाई वी फील लाइक अ चोकिंग सेंसेशन, हिकअप और अ कफ इफ वी आर टॉकिंग व्हाइल ईटिंग. इसीलिए बोला जाता है कि बातें करके खाना नहीं खाना चाहिए. ओके, then next we have is stomach. Now stomach, when you see, it is the thick walled bag like structure and it is like a flattened J. ये आपको दिख रहा है इस तरह से J. Okay, and it is the widest part of the alimentary canal. So ये जो फूड है कहाँ से मिलेगा? फूड पाइप से आएगा into the stomach. ओके, और एक एंड से स्टमक में जाएगा, दूसरे एंड से बाहर निकलेगा और इंटेस्टाइन में जाएगा. The food will enter into the stomach from one end and relieves the stomach and enters into the intestine from the other end. Okay,
अभी आप देखोगे तो स्टमक के अंदर देयर इज अ इनर लाइनिंग, ये अंदर की जो लाइनिंग है, दिस इनर लाइनिंग, अंदर की लाइनिंग, ओके, दिस इनर लाइनिंग सिक्रीट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द डाइजेस्टिव जूसेस। तीनों के अपने अपने फंक्शन है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस। देखो सबसे पहले म्यूकस का काम क्या होता है, टू प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, क्योंकि HCl सिक्रीट होता है। यहाँ पे जो खाना है वो एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है क्योंकि HCl इज सिक्रीटेड। HCl क्यों सिक्रीट होता है, बिकॉज इट हैज टू एक्टिवेट द एंजाइम प्रेजेंट इन द स्टमक विच इज अ प्रोटीनेशियस एंजाइम, जो कि प्रोटीन्स पे ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, सो इसीलिए ये जो लाइनिंग अगर आप देख रहे हो, ये म्यूकस प्रोटेक्ट करता है और एसिड सिक्रीट होता है। ठीक है, अब ये जो एसिड है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है स्टमक के अंदर। ठीक है, और डाइजेस्टिव जूसेस को भी एक्ट करता है। तो म्यूकस का काम क्या होता है, एसिड के सिक्रीशन से बचाना, और एसिड भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो प्रोटीन वाले डाइजेस्टिव जूसेस को एक्टिवेट करता है। ठीक है, उसके अलावा कभी कभार ऐसा होता है कि खाने में कुछ बैक्टीरियाज आ जाती है, तो वो बैक्टीरिया को भी एसिड किल कर देता है। ठीक है, तो स्टमक के अंदर क्या क्या है, आपको क्या याद रखना है, एक तो म्यूकस है which protects the lining of the stomach from the effect of the acid, then HCl, hydrochloric acid. HCl is secreted. This HCl is required for the activation of protein enzymes, okay, and also to kill the bacteria which is entering along with the food. So stomach के अंदर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, proteins are broken into simple substances, not completely broken down, partially broken. ठीक है, सो माउथ के अंदर जब हमने शुरू किया था तो कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज स्टार्च वाज ब्रोकन डाउन इनटू शुगर, नॉट कंप्लीट ब्रेकडाउन, पार्शियल ब्रेकडाउन। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे स्टमक के अंदर प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो रहा है। उसके अलावा स्टमक एक्ट्स एज अ टेम्पररी स्टोरेज ऑर्गन फॉर द फूड, कुछ समय के लिए खाना स्टमक में स्टोर होता है, फिर वो आगे पास ऑन हो जाता है इंटेस्टाइन के अंदर। Okay, any doubts so far? No, ma'am. No, ma'am. Okay, just a second, then हम आगे बढ़ेंगे इसी में ही। Okay. Now see, this was the working of the stomach was discovered by Alex Saint Martin when he was being hit by a shotgun. तो एक छोटा सा होल रह गया था स्टमक के अंदर, and then this was brought to a notice of Dr. William Beaumont. So William Beaumont ने क्या किया था, उनकी लाइफ तो बचा ली थी एलेक्स सेंट मार्टिन की, जिनको बुलेट लगी थी, बट ये जो होल है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हुआ था। सो वहां से डॉक्टर विलियम ब्यूमोंट ने देखा कि स्टमक के अंदर क्या क्या चल रहा है एग्जैक्टली, ओके, एंड देन some wonderful observations were made by Beaumont, that is stomach is responsible for churning of the food, it secretes a fluid which could digest the food, and you could see that at one end of the stomach there is intestine attached. So जो भी जितना भी खाना है वो स्टमक के बाद कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। Okay, so the next part that we have is the small intestine. Now you see the small intestine, it is also a highly coiled structure and it is about 7.5 meters long. So जब आप ये intestine को extend करें, खींचेंगे ना, एकदम पूरा उसको फैला के रखेंगे ना, ये जो structure आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये पूरे structure को जब आप ऐसे पूरा फैला के straight करके आप रखोगे ना, तो इसका हाइट आपको मिलेगा 7.5 मीटर्स लॉन्ग। तो सोचो कितना सारा वो फोल्डेड स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी के
अंदर पूरा ये अच्छे से फोल्ड किया हुआ है, इसीलिए इतनी छोटी सी जगह में अकोमोडेट हुआ है। ठीक है, नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे पूरा खाना आपका डाइजेस्ट होता है। दैट मीन्स all your carbohydrate, proteins and fats are completely digested into simple substances. Okay, so small intestine, what it does, it receives the secretions from the liver also and the pancreas. Small intestine के अंदर तो secretions होते ही होते हैं, उसके अलावा liver और pancreas से भी secretions आते हैं small intestine के अंदर. Okay, so the wall of the intestine will secrete the digestive juices, plus the secretions of the liver and pancreas will also help in digestion. So जो partly digested food था, जो कि stomach से आया था, वो intestine में जाएगा, small intestine. Okay, and then it combines with intestinal juice. Intestinal juice में आपके तीनों आ गए, small intestine का secretion plus liver का secretion plus pancreas का secretion, and it then helps in the complete digestion of the food. Yes, Rishita? मैम गैल बैल्टर क्या कहाँ पे होता है? क्या बेटा? गैल बैल्टर गॉल ब्लैडर. ओके, देखो ये एक बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है लिवर के बाजू में. ठीक है, सो लिवर का काम क्या होता है? बाइल को प्रोड्यूस करना होता है. हम पढ़ेंगे बाइल किस काम में आता है अभी नेक्स्ट स्लाइड में ही. सो लिवर क्या करता है? बाइल प्रोड्यूस करता है, और ये जो बाइल है ना, वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर. ठीक है, तो ये एक बैग जैसा, थैली जैसा स्ट्रक्चर है, जिसमें लिवर बनाता है बाइल, और बाइल स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर में. ओके मैम. Okay, so now see, here you can see the partly digested food will reach into the small intestine. Now the intestinal juice will complete the digestion of all the components of the food. So ये देखो, ये आपके लिए नोट करना और याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू सिंपल शुगर्स लाइक ग्लूकोज. ओके, सो कार्बोहाइड्रेट्स जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, वो ब्रेक डाउन होंगे सिंपल सब्सटेंसेस में, दैट इज ग्लूकोज. फैट्स विल बी ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और प्रोटीन्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे अमीनो एसिड्स में. ओके, सो अभी हम देखेंगे लिवर और पैनक्रियास का क्या फंक्शन है. देखो, लिवर, इट इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड. इट इज सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड. स्टमक आपका लेफ्ट साइड में है, ये लेफ्ट साइड में आपका स्टमक आता है, राइट साइड में आपका लिवर आता है. ठीक है, सो हियर यू कैन सी दिस लिवर which is on the right side. It is the largest gland in the body. सबसे बड़ा gland है body के अंदर. It secretes bile juice and it is stored in a sac-like structure called gallbladder. Sac means bag जैसा structure. ये रहा इधर है ना, जो जिसको हम बोलेंगे gallbladder. अब bile का काम क्या होता है? देखो, it plays an important role in the digestion of fats. Okay, fats को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं ताकि उनका डाइजेशन हो सके. ठीक है, फिर आता है पैनक्रियास. नाउ दिस पैनक्रियास, इट इज आल्सो अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, क्रीम कलर ग्लैंड, स्टमक के नीचे होता है, और ये इस तरह से लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है. एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स. ठीक है, सो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है पैनक्रियास, और ये जो पैनक्रियाटिक जूस है, ये तीनों पे, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स पे एक्ट करता है और उसको सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट करता है. ओके, अब ये जो फूड, जैसे कि हमने बोला था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा डाइजेस्ट हो जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स तीनों ही डाइजेस्ट हो जा रहे हैं. तो अब क्या होगा? डाइजेस्ट होने के बाद दे नीड टू बी अब्सॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको अब्सॉर्ब होना पड़ेगा. तो अब्सॉर्प्शन के लिए नाउ व्हाट विल हैपन? There are the inner walls of the small intestine which contains a finger like outgrowths. ऐसी बहुत सारी छोटी 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 आपको finger like projections दिखेंगे, जिनको हम बोलते हैं villi. Okay, so देखो villi का काम क्या होता है?
to increase the surface area for absorption of digested food. विलाय क्या करता है? It increases the surface area, ठीक है, ताकि मैक्सिमम फूड अब्सॉर्ब हो सके, जो भी डाइजेस्टेड फूड है मैक्सिमम वो अब्सॉर्ब हो सके. ओके, नाउ these absorbed substances are then transported via the blood vessels to different organs of the body. Okay, अब ये जितने भी absorbed substances हैं वो धीरे धीरे क्या होगा, ब्लड वेसल से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में चले जाएंगे, पास ऑन हो जाएंगे टू फर्दर बिल्ड द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. ठीक है, जैसे कि और ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और हमारे बॉडी में जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का प्रोडक्शन है वो कैरी आउट करेंगे. ओके, तो इनको हम बोलते हैं असिमिलेशन. अब्जॉर्प्शन के बाद होता है असिमिलेशन. यस ऋषिता. मैम ये ग्रीन बॉक्स में CHO का मीनिंग क्या है? कहाँ पे? मैम हियर. मैम हियर. ये वाले स्लाइड में? यस मैम. ये वाला C6H12O6 के, हाँ ये ग्लूकोज है ना. ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है कि किस तरह से आपको फूड, ये आपका फूड है, ये ग्लूकोज है. सो किस तरह से ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और आपको ये एनर्जी मिलता है. ठीक है. ओके मैम. तो सेल्स के अंदर आप देखोगे तो ग्लूकोज विल ब्रेक डाउन. जैसे अब ये खाना है, ये खाना अब्सॉर्ब होने के बाद हर एक सेल में जाएगा असिमिलेशन के लिए. सो असिमिलेशन में क्या होता है, ये जो ग्लूकोज है ये ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड. दैट इज व्हाई जब भी आप खाना खाते हो तो यू फील एनर्जेटिक थोड़ी देर के बाद. ओके है ना. तो ये इसीलिए क्यों आप ऐसा एनर्जेटिक फील करते हो, या फिर पूरे दिन में आप पूरा काम वाम कर सकते हो. क्यों? क्योंकि ये जो खाना है ये ब्रेक डाउन हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, अब्सॉर्ब हो रहा है, असिमुलेट हो रहा है, और फाइनली इट इज रिलीजिंग एनर्जी टू कैरी आउट डिफरेंट डिफरेंट वर्क. ओके, एंड लास्टली द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, जो कि कुछ पार्ट ऑफ द फूड ऐसा भी रहता है जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाया होता है, वो अनअब्सॉर्ब रह जाता है, एंड देन इट एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. सो देखो, लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है फॉर अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर. जो भी अनअब्सॉर्ब या अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से आपका वाटर अब्सॉर्ब हो जाएगा. लेंथ आप देखोगे तो लार्ज इंटेस्टाइन की छोटी है, 1.5 मीटर ही है केवल. ये इस तरह से जो आउटलाइन वाला पार्ट आप देख रहे हो वो लार्ज इंटेस्टाइन है और उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है. सो इसकी जो लेंथ है वो 1.5 मीटर्स है. ओके, और इसका काम रहता है टू अब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल. अब आफ्टर वाटर इज अब्सॉर्ब, यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होगा, खाली वाटर अब्सॉर्प्शन होगा. जितना भी वाटर अब्सॉर्ब हो जाता है उसके बाद जो भी अनडाइजेस्टेड फूड बचता है उसको हम बोलते हैं फीसिस, सेमी सॉलिड फीसिस. एंड दीज फीसिस आर रिमूव्ड थ्रू द एनस and this is called as egestion. Okay, now sometimes there is a medical condition in which the person experiences watery stools. Okay, the feces are watery, so that is called as diarrhea. जैसे कि मान लो कोई इन्फेक्शन हुआ है या फूड पॉइजनिंग हुआ है या फिर कुछ इनडाइजेशन हो गया है तो लूज मोशन जैसा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं डायरिया. So this is very common, particularly in children, and if not taken care, it could be fatal, it could be deadly, because क्योंकि बहुत सारा पानी भी लॉस होता है, डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं. स्टूल के साथ साथ बहुत सारा पानी भी लॉस होता है, एंड ऑल्सो देयर इज एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स. पानी तो होता ही है, उसके साथ साथ में सॉल्ट्स भी लॉस होते हैं. सो दैट इज व्हाई इट कैन बिकम वेरी डेंजरस. ओके, सो बिफोर the person gets admitted to the hospital or doctor is concerned, plenty of boiled and cooled water with a pinch of salt and sugar dissolved in it is given. Okay, so बहुत सारा पानी, बॉईल किया हुआ पानी, ताकि उसमें कोई भी बैक्टीरिया ना रहे, उसको ठंडा करके उसमें थोड़ा सा नमक और शुगर डाल के दिया जाता है, so that
the salt concentration is maintained in the body. इस सोल्यूशन को हम बोलते हैं ORS. आजकल आपको बाहर मेडिकल पे भी मिल जाते हैं पैकेट्स में, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन ORS. ये पिलाया जाता है या फिर ग्लूकॉन डी पिलाया जाता है. ओके, सो उसका यही मतलब होता है कि डिहाइड्रेशन होने नहीं देना है बॉडी के अंदर. ओके, देन अनदर टॉपिक वी हैव इज डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. सो जैसे कि जो आपने देखा होगा काउज हैं, बफेलोज हैं, और या तो ऐसे जो दूसरे ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, ये क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली दे आर चूइंग देयर फूड. खाना नहीं भी खा रहे होते हैं ना, अगर उनके आजू बाजू खाना नहीं भी होता है ना, फिर भी उनका मुंह चलता रहता है, चू करते रहते हैं. सो ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, इनमें क्या होता है, सी व्हेनेवर द फूड इज गिवन टू देम दे क्विकली स्वेलो द ग्रास. आपने देखा होगा गाय भैंस को जब अपन चारा डालते हैं ना, तो वो क्विकली पूरा पहले तो खा लेती है, फिर वो ये ग्रास को स्टोर कर देती हैं इन द पार्ट ऑफ द स्टमक विच इज कॉल्ड एज रूमन. सो रूमन इनके स्टमक का एक पार्ट होता है जहां पर ये ग्रास को स्टोर कर देती है. ओके, अब फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड, क्योंकि उन्होंने सिर्फ स्वालो करके अंदर रख दिया है. तो यहाँ पे ये जो खाना होता है दैट इज पार्शियली डाइजेस्टेड. इसको हम बोलते हैं कर्ड, CUD. ओके, अब ये जो कर्ड है धीरे धीरे वो थोड़ा थोड़ा करके वापस माउथ तक लाती है और फिर से उसको चू करने लगती है. ठीक है, सो इस तरह से वो धीरे धीरे चूइंग करती है. इसलिए हमको लगता है कि वो खाना नहीं भी खा रही होती है, पर फिर भी वो खा रही होती है क्योंकि उसका मुंह चल रहा होता है. सो दैट इज बिकॉज what they are doing is when the food is available they swallow it, partially digest it, and then they move out that curd into the mouth and again redigest it into smaller parts. So इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रूमिनेशन, और ये जो एनिमल्स है इनको बोला जाता है रूमिनेंट्स. ठीक है, अब ग्रास के अंदर, ग्रास किससे बना होता है, सेल्यूलोज से बना होता है. सेल्यूलोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. जैसे हम रोटी और चावल खाते हैं तो उसके अंदर स्टार्च होता है. सो इन द सेम वे द ग्रास कंटेन्स सेल्यूलोज. ओके, सो नाउ the animals or the ruminants particularly like cattle, deer, okay, they have a special kind of bacteria present in their rumen. और ये जो बैक्टीरिया है this helps in the digestion of cellulose. जबकि आप एनिमल्स में देखोगे तो जैसे कि हम में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होते हैं जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सके. वो एज इट इज वेस्ट में निकल जाएगा, बट इट इज नॉट डाइजेस्टेड इनटू अवर बॉडी. ठीक है, बिकॉज वी डोंट हैव दैट बैक्टीरिया विच कैन ब्रेक डाउन द सेल्यूलोज, इसीलिए हम ग्रास नहीं खाते. ओके, देन देयर आर एनिमल्स लाइक horse, rabbit, etc. They have a large sac-like structure called cecum between the esophagus and the small intestine, and the cellulose of the food is digested here by the action of bacteria, and these bacteria are not present in humans. All right, and then the last part we have is feeding and digestion in amoeba. So here you can see animals, they have the digestive system. अभी हमने देखा तो वो सब एनिमल्स के बारे में हमने पढ़ा जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, लेकिन बहुत सारे ऐसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास ये वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है. दे डोंट इवन हैव अ माउथ और अ डाइजेस्टिव सिस्टम. जैसे कि अमीबा. सो अमीबा एक ही सेल से बना है. इट इज यूनिसेल्युलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म which is found in pond water. So amoeba के पास सेल मेम्ब्रेन होता है. ये आप देख रहे हो इरेगुलर शेप मेम्ब्रेन है जिससे ये अमीबा बना हुआ है. एक न्यूक्लियस है और बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं इसके मैट्रिक्स में, साइटोप्लाज्म. ओके, सो अब अमीबा कैसे अपना फूड लेता है वो देखेंगे हम. सी अमीबा इट फीड्स ऑन सम अदर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. सो जैसे ही अमीबा को दिखता है कि फूड आजू बाजू में है, व्हेनेवर अमीबा सेंसेस दैट द फूड इज नियर बाय, सो व्हाट विल हैपन, दिस अमीबा विल पुश आउट इट्स सूडोपोडिया. वो खाने के आगे
ये अमीबा का ही एक पार्ट है जो कि एक फॉल्स लेग्स जैसा बना देगा. सूडोपोडिया मीन्स फॉल्स लेग्स. सूडो इज फॉल्स, पोडिया इज लेग्स. सो ये ऐसे एक elongated स्ट्रक्चर बना देगा फूड पार्टिकल्स को जो कि सराउंड करेगा. ओके, सो अभी नाउ द फूड पार्टिकल विल engulf by this pseudopodia and the food will get trapped in the food vacuole. आप यहाँ पे एक गोल गोल स्ट्रक्चर देख रहे हो व्हाइट कलर का जिसके अंदर ब्लू कलर का खाना है. दैट इज द फूड वैक्यूल. अब ये जो फूड वैक्यूल है ये क्या करेगा, ये खाने को अंदर पहुंचाए. ओके, एंड बाय द एक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेस द फूड इज ब्रेकन डाउन इनटू सिंपल substances. Okay, so, and then gradually the food is absorbed and assimilated and the leftover part is removed out of the body which is called egestion. Okay, so in a nutshell हमको क्या याद रखना है कि जो बेसिक प्रोसेस है डाइजेशन का वो सेम ही रहता है. दैट इज द फूड इज टेकन, इट इज डाइजेस्टेड, absorbed, assimilated and releases the energy. तो ये जो प्रोसेस है ये हर एक ऑर्गेनिज्म में सेम रहता है, खाली जो तरीका है वो अलग अलग रहता है. ठीक है, सो चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है. यहाँ तक कुछ डाउट है आपको किसी को भी बेटा तो प्लीज पूछो. No, ma'am. Quickly in the chat box or anybody, if you have any doubt, please speak up. भले कोई भी छोटा सा भी डाउट हो तो पूछो, या कुछ नहीं समझ में आया हो फिर से समझना हो तो भी पूछ सकते हो. ठीक है, चलिए कोई डाउट नहीं है तो हम फिर करेंगे वर्कशीट. अभी वर्कशीट मैंने जैसे आपको बोला है क्योंकि ये रिवीजन वर्कशीट है तो आप सबको आंसर्स देने हैं. तो जिसको भी आंसर आता है फटाफट से हाथ ऊपर कर लेंगे और मैम 1 बाय 1 पूछेंगे. ठीक है, कोशिश करेंगे, नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं. हाँ बेटा. Size a bit bigger. सॉरी, Ma'am, can you increase the size? कैन आई? Can you please increase the size because it's looking so tiny, small. It is now. Yes, ma'am. Now, okay. Okay, fine. Okay, so you all have textbook with you. Yes, ma'am, I have. Okay, so you can even look into the textbook and answer, no problem, but just answer. Okay, all of you. ठीक है बेटा, सबको आंसर करना है. So चलो, first question. Discuss any 2 different ways of taking food by the organism. Okay. Yes, Arna. Plants and animals. Animals. देखो लिखा हुआ है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड वाला पैराग्राफ देखो टेक्स्ट बुक में. I फटाफट don't से. have my textbook now. Bees take their food by sucking, animals by feeding, snakes by swallowing. Okay, okay. मिला सभी को? आगे आ गई है ऋषिता, देखो डिफरेंट वेज पिंक कलर के हेडिंग में लिखा हुआ है. एक मिनट रुको, मैं आपको पेज नंबर बताती हूँ. देखो आपको फॉलो टेक्स्ट बुक ही करना है, जो भी आप पढ़ते हो वो अच्छे से टेक्स्ट बुक में से पढ़ो. ठीक है, सो टेक्स्ट बुक आपका थरो होना चाहिए हमेशा. Page number. बताती हूँ बेटा, एक मिनट. पेज नंबर यहाँ मेरे इसमें पेज नंबर नहीं दिया हुआ है. फर्स्ट पेज पे ये 2.1. दिखा डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. हाँ दिख गया, उसी में से ही है आपका. ठीक है, सो बीज एंड हमिंग बीज suck the nectar of the plants. Infants of human feed on mother's milk. Snakes, they swallow the animals. ठीक है, चलो मूविंग on to the next question. Name the compartments present in the human digestive system.
वो जो स्टार्टिंग में मैंने आपको 6 कंपार्टमेंट्स बताए थे. Mouth, esophagus, and that one. Yes, buccal cavity, food pipe. Ma'am, food pipe, stomach, Esophagus, small stomach, intestine, small large intestine, intestine, large intestine, rectum, and anus, Yes. rectum. So you have to follow that order. Buccal cavity, food. Huh? Can you repeat because almost Buccal cavity, फूड पाइप और द इसोफेगस. ये आपको बुक में भी दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है. बकल कैविटी, फूड पाइप और द इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस. Then next question, name the organs secreting digestive juices. Small intestine, stomach, Small intestine is one. stomach, Stomach two, yes. और भी है, बोलो. Ma'am, pancreas, Pancreas, yes, very good. liver, 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 very good. एक और. ma'am, Salivary glands. salivary. ठीक है. So salivary glands, stomach, small intestine, liver and pancreas. 5 हो गए. Yes, ma'am. बस ये 5 ही है. Then name the different types of teeth present in human. Ma'am, Molars, incisors, premolars, canyons, premolars, and molars. हाँ, ओके. तो आपको क्या याद रखना है? ICPM. Incisors, Incisors, premolars, premolars, molars. Okay, very good. Function. Ma'am, incisors are used for cutting of food. Very Canyons good. are used for tearing of And food. premolars are used for grinding. of food. Molars are used for grinding of food. Okay, very good. So all the 4 functions clear. ये आपको PPT में भी दिया हुआ है, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो बाद में. Then 5th question, saliva present in dash breaks it down into sugar. Okay, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करती हूँ. The saliva okay, the saliva in the mouth acts on dash and breaks it down into sugar. जिसको आता है प्लीज हैंड रेज कर दीजिए बेटा. Ma'am, metal, यस बेटा बोलो. buccal cavity. स्टार्च. सलाइवा माउथ में होता है, इट एक्ट्स ऑन स्टार्च. स्टार्च के ऊपर एक्ट करेगा और उसको शुगर में ब्रेक डाउन करेगा. ठीक है. सो द आंसर विल बी स्टार्च. आपको चाहिए तो अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ताकि जब आप ये रिवीजन वर्कशीट सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर याद रहना चाहिए. तो अपने कॉपी में कहीं पे भी आप लिख सकते हो. देन 6th क्वेश्चन, टूथ डीके इज ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ शुगर इनटू डैश बाय बैक्टीरिया. किसमें शुगर ब्रेकडाउन होता है? मैंने आपको बताया था, क्या आपके दांतों को क्या चीज सड़ा देती है? शुगर होता है. शुगर किस में ब्रेक डाउन होगा जो आपके दांतों में सड़न करेगा? याद करो. मैम, टूथ डीके. बेटा टूथ डीके तो हो रहा है. टूथ डीके किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि शुगर किस में टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है? इनटू एसिड्स. ओके, शुगर इज ब्रोकन डाउन इनटू एसिड्स. तो देखो याद रखना है, लेक्चर भूल नहीं जाना है, अभी अभी पढ़ा है. देन व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट योर टंग्स डिटेक्ट? कौन कौन से 4 टेस्ट आते हैं आपको? मैम, bitter, sour, Sweet, salty, sour. sweet. मैम, bitter, sour, salty, sweet. हाँ, बिटर, सार, साल्टी और स्वीट, ये 4 टाइप के टेस्ट आते हैं. ठीक है, चलिए. देन ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द स्टमक. तो आपको इसमें पूरा स्ट्रक्चर लिखना है. जे शेप ऑर्गन है. मैम, may I tell? I'll tell you. See, you have to remember the points because this is a long question. Okay.
So stomach is the J-shaped structure. It is connected with the food pipe at one end and small intestine at the other. And functions में it secretes mucus, hydrochloric acid, and also it brings digestion of proteins. ठीक है, Okay. ये सब पॉइंट्स आप याद रखोगे और लिखोगे स्टमक के बारे में. देन 9th है नेम द ऑर्गन दैट सिक्रीट्स बाइल. हाँ ऋषिता बोलो तो जरा, आपने मेरे को क्वेश्चन पूछा था. मैम लीवर. लिवर. एंड द ऑर्गन दैट स्टोर्स बाइल. मैम गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर. ओके, सो लिवर क्या करता है, सिक्रीट करता है बाइल को, और गॉल ब्लैडर स्टोर करता है बाइल को. और गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ बाइल. Ma'am, the bile juice plays an important role in digestion of fats. Very good. It helps in the digestion of fats. And next, can I help? Yes. Give the role of pancreatic juice. Ma'am, the pancreatic juice helps us to break down the sugar, fat, and starch of our body. शुगर नहीं it's बोलेंगे हम. also- It helps in the breakdown of carbohydrate, fats and proteins. Okay, ma'am. ठीक है, क्योंकि शुगर ऑलरेडी ब्रोकन डाउन होता है, उससे फर्दर वो ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स इस तरह से हम बोलेंगे. ठीक है. Then the finger-like outgrowth present in the small intestine are called. मैम 10th क्वेश्चन रह गया. 10th रह गया. हाँ वही मैंने बताया ना, पेनक्रियाटिक जूस का रोल, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन. ओके, बाइल it helps in the breakdown of fats. और pancreatic juice it helps in the breakdown of all three carbohydrates. And your voice is very low. 10th answer is pancreatic juice helps in the breakdown of carbohydrate, proteins and fats. ठीक है. Yes. Then 11th question. The finger-like outgrowth present in the small intestine are called. मैम villi. 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 Function क्या है? Give its function. The inner wall of the small intestine. Function बेटा, खाली function बोलो. Question समझो पहले. It helps in the absorption of food. ठीक है. क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको क्या पूछा गया है, फंक्शन तो फंक्शन बोलना है, इंपॉर्टेंस तो इंपॉर्टेंस बोलना है, स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर बताना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है. जो पूछा है वही अपन को बताना है. ठीक है. ओके मैम. देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. सो जो अभी अगेन दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन. जब भी आपको आता है ना एक्सप्लेन, तो वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आता है. सो डाइजेशन के लिए आप पूरा बताओगे. रूमिनेंट्स में जो पूरा प्रोसेस होता है, दे टेक अप द ग्रासेस, देन दे स्लोली ईट इट, फिर कर्ड बनता है, कर्ड माउथ तक आता है. ओके, तो वो पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करना है. आया समझ में? दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन. सो बुक में लिखने हैं ये सारे आंसर्स आपको. नाउ 13th वन. गिव रीजन. Cellulose is digested in ruminants but not in humans. Cellulose is digested in ruminants but not in humans. आपको गिव रीजन देना है. क्या बोलेंगे गिव रीजन में? Because ruminants digestive system contains the bacteria which digests cellulose, and that bacteria is not present in humans. ठीक है. Yes मैम. आया समझ में? Yes मैम. Okay, then 14th. The finger-like projections in amoeba for food capture are called pseudopodia. True or false? True. Ma'am false. True. Ma'am, true. Yes, answer is pseudopodia is true. Okay, then in diarrhea, watery stools are passed. True or false?
True. ट्रू. ओके, दैट इज ऑल्सो ट्रू. तो दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पे ट्रू है. इसके अलावा कुछ डाउट्स हैं किसी को? No, ma'am. ओके, सो ये वर्कशीट आपको भेज दी जाएगी, ये आपको सॉल्व करनी है. ओके, और यहाँ पे अपना पूरा रिवीजन खत्म होता है. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. आपको 1 मार्कर्स अच्छे से पता होने चाहिए, डेफिनेशंस पता होनी चाहिए. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू, Ma'am, ये सब प्रिपेयर होना चाहिए. एक 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 Ma'am? लाइन आप पढ़ोगे. यस, can you please again send the revision sheet of chapter 1 nutritional plant? whatever revision sheets that you want, you have to tell Stuti ma'am. Okay. Okay, Stuti ma'am will give it Ma'am, to as you I all. didn't attend that class of revision. No problem. Since you have missed it, you can talk to Stuti ma'am. So ma'am will forward you the revision worksheets. Okay. और ये वर्कशीट भी आपको मिल जाएगी, अभी शाम तक मिल जाएगी. ठीक है, थोड़ी देर में मैम आपको भेज देंगे. ओके, सो डू वेल इन योर एग्जाम्स. रीड टेक्स्ट बुक, अच्छे से टेक्स्ट बुक पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ो. ठीक है, और क्वेश्चन को समझो और फिर आंसर करो. Yes. ठीक है, चलिए. सो वी विल वाइंड अप अवर सेशन. बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे.